اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جولائی کی 7 تاریخ ہے۔ درجہ 12 کے لیے جو آج ہمارا موضوع ہے مرحوم کی یاد میں، یہ پطرس بخاری کا ایک فضائیہ مضمون ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے آج یہ لیکچر نمبر 6 ہے۔ میں پڑھتا ہوں تو آپ دھیان رکھنا۔ نوکر سے کہا، دیکھو یہ اوزار یہی چھوڑ جاؤ اور دیکھو بائسیکل کو نوکر سے کہا، دیکھو یہ اوزار یہی چھوڑ جاؤ اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو اور یہ موڑ پر جو بائسیکل والا بیٹھا ہے اسے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ اور دیکھو ابے باغا کہاں جا رہا ہے، ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں۔ بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا اور جہاں تیل ڈالنے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا اور بائسیکل والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں۔ تو جب مرزا نے سائیکل بھیجی تھی تو نوکر نے اطلاع دی، مصنف کو پطرس بخاری کو نوکر نے اطلاع دی کہ سائیکل رات کو ہی پہنچی تھی اور اس نے وہ اوزار بھی ساتھ لایا ہے۔ تو صبح سویرے جب پطرس بخاری اٹھے تو نوکر سے کہا یہ اوزار یہی رکھو اور سامنے والا جو سائیکل والا ہے اس کے پاس جاؤ اور وہاں سے پہلے تو اس کو سائیکل کو اچھی طرح سے صاف کرنا، کپڑے سے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا، تو یہ اس پر جو گرد ورد مت ہوگی تو اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا اور سامنے والا جو سائیکل والا ہے وہاں جاؤ، وہاں سے یہ تیل لے آؤ، کپی میں تھوڑا سا تیل لے آؤ۔ تو اور جہاں پہ تیل ڈالنے کی جگہ ہے وہاں سے اچھی طرح سے اس کو تیل ڈالنا اور اسے کہنا، ساتھ ہی کہا کہ اسے کہنا کوئی گھٹیا سا کوئی خراب تیل نہ دے، اگر اس نے کوئی خراب تیل دے دی تو پوری بائسیکل جو ہے اس کے پرزے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی گھٹیا تیل آپ لے آئے تو اس کو کہنا اچھا والا تیل دینا۔ بائسیکل کے پرزے نازک ہوتے ہیں اور بائسیکل باہر نکال رکھو کیونکہ یہ جو بائسیکل کے پرزے ہیں یہ نازک ہوتے ہیں، اگر کوئی گھٹیا تیل ان میں لگایا جائے یہ خراب ہو جائیں گے۔ اور بائسیکل ساتھ ہی کہا کہ بائسیکل باہر نکال کے رکھو، ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ذرا سیر کو جا رہے ہیں اور تب تک میں کپڑے پہنوں گا، نہاؤں گا کپڑے پہنوں گا اور ہم بائسیکل پر سیر کو جائیں گے اور دیکھو صاف کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اچھی طرح سے اس کو صاف کر دینا، یعنی کہ سائیکل کو اچھی طرح سے جھاڑ پھونک دینا۔ حضور وہ تیل ڈالنے کے چھید ہوتے ہیں نا وہ نہیں ملتے، تو پھر کہتا ہے یعنی کہ سائیکل اتنی پرانی تھی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ جو چھید ہے سراغ جو ہے نوکر کہتا ہے کہ جو تیل ڈالنے کے جو سوراخ ہوتے ہیں حضور وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا وجہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور درو پہ میل اور زنگ جمع ہے، جو درے ہے یعنی کہ پیج کے اوپر کا حصہ جہاں سے پیج کو کسا جاتا ہے تو اس پر کافی میل جمع ہے اور اس میں کافی زنگ بھی لگا ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ ہی میں دبا گئے ہیں اور اس پر اتنا میل جمع ہے، اتنے اس پر یہ زنگ جمع ہو چکی ہے کہ اب وہ یہ پیچ جہاں سے پیچ کستے ہیں وہ جگہ ہی دب گئی ہے۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا، اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے، لیکن مجمل حیث سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ہل اور راہٹ اور چرخہ اور اسی
तरह की और जदीद ईजाद से पहले की बनी हुई है। तो जब मैं उस साइकिल के करीब पहुंचा जिसको मेरा नौकर जिसको बाइसिकल कह रहा, जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसके मुख्तलिफ पुर्जों पर मैंने जब गौर किया, जब मैंने गौर से देखा इसके मुख्तलिफ पुर्जों, तो लगा मुझे लगा कि बाइसिकल ही है, लेकिन मजमल हयत, लेकिन इसकी जो मुख्तसर बनावट थी, यानी कि उस मजमल हयत से मुराद है मुख्तसर बनावट। इसकी मुख्तसर बनावट से मुझ पर यह साफ जाहिर हुआ कि जिस तरह हल होता है, राहट, राहट से मुराद है कवे से जो पानी निकाला जाता है, वो चरखा, जिससे कवे से पानी निकाला जाता है उसको राहट बोलते हैं, और चरखा जिसको कश्मीरी में यंदर बोलते हैं, हल को बोलते हैं अलबान। और इसी तरह की और जदीद इजादात से पहले की बनी हुई है। मुझे लगता है इसकी मुशाबत हल से थी, इसकी मुशाबत राहट से थी, इसकी मुशाबत चरखा से थी। यह कोई जदीद, कोई नई इजाद मालूम होती थी। पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराग तलाश किया जहां किसी जमाने में तेल दिया जाता था। जब मैंने पहिए को खूब घुमाया तो मैंने तलाश किया कि जहां जिन सुराखों से तेल डाला जाता था, लेकिन अब इस सुराख में से आमद और रफत का सिलसिला बंद था। अब उसमें आमद और रफत का सिलसिला, आने जाने का सिलसिला उन सुराखों में बंद, यानी कि तेल डालने की जगह उनमें मौजूद नहीं थी। आमद और रफत से मुराद है आना जाना, यानी कि अब सदियों से उनमें अब तेल डाला ही नहीं गया, क्योंकि उनमें आमद और रफत का सिलसिला बंद हुआ था, यानी कि तेल डालने की जो जगह थी वो उस पर जंग लगा था, मेल जमा था, लिहाजा उसमें तेल नहीं जाता था। चुनांचे नौकर बोला, वो तेल तो सब इधर उधर बह जाता है, बीच में तो जाता ही नहीं। तो नौकर ने कहा कि वो तेल जो है वो सब इधर उधर जाता है और बीच में कुछ जाता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऊपर डाल दो, चलो ऊपर से ही डालो, ये भी मुफीद होता है, तो इससे भी फायदा होगा कि ऊपर से ही डालो। आखिरकार बाइसिकल पर सवार हुआ, पहला ही पाँव चलाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसा कोई मर्दा अपनी हड्डियां चटका चटका कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा होता है। जब मैंने पहला ही पाँव मारा, जब मैं साइकिल पर सवार हुआ, तो मुझे लगा कि जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां तोड़ तोड़ कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा है, यानी कि इस तरह की मुख्तलिफ आवाजें इससे आने लगी। घर से निकलते ही कुछ थोड़ी सी उतराई थी, जब मैं घर से निकला कुछ उतराई थी, यानी कि चढ़ाई उतराई थी। इस पर बाइसिकल खुद ब खुद चलने लगी, साइकिल खुद ब खुद उस पर चलने लगी, लेकिन इस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन पर बहता है। इतनी ही तेज रफ्तार उस साइकिल की थी, चढ़ाई पे उतरते वक्त उसकी रफ्तार इतनी ही तेज थी जितना तारकोल को जब सड़क पे बिछाया जाता है, क्योंकि जब तारकोल को सड़क पर बिछाया जाता है तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है, कम होती है, यानी कि चढ़ाई पर उतरते समय में भी इसकी रफ्तार तेज न हो सकी, यानी कि पुरानी साइकिल थी, इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। और साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाज़ें बरामदनी शुरू हुई, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इनकी आवाज़ों के मुख्तलिफ ग्रोह थे, इन आवाज़ों के मुख्तलिफ ग्रोह थे। ची, चां, चूं की कस्म की आवाज़ें ज़्यादातर गद्दी के नीचे और पिछले पहिए से निकलती थी। कौन कौन सी आवाज़ें? ची, चां, चूं, यह आवाज़ें गद्दी यानी कि सीट के नीचे से और पिछले पहिए से यह आवाज़ें आती थी। खट 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 खरड के और कबील आवाजें मडगाड़ से आती थी, मडगाड़ से यह आवाजें आती थी। खट 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 खरड के और कबील और इससे पहले की आवाजें मडगाड़ से आती थी। चर चरक चर चरक की कसम के सुर पैदल से निकलते थे और मीठे सुर, यह आवाज चर चरक चर चरक, ये पैदल पैदल से यह आवाजें आती थी। जंजीर ढीली ढीली थी, जो इसकी जंजीर थी वो ढीली थी। मैं जब भी पैडल पर जोर डालता था तो जंजीर में एक इंगडाई सी पैदा होती थी। जब मैं पैडल पर जोर मारता था तो इस जंजीर में एक इंगडाई सी होती थी, यानी कि इसमें एक खचाव पैदा होता था, जंजीर में एक खचाव पैदा होता था, जिससे वो तन जाती थी, जिससे वो थोड़ा दूर हो जाती थी, कस जाती थी और चढ़ 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 बोलने लगती थी, और ये इससे आवाजें आने लगती थी और फिर ढीली हो जाती थी, फिर ये ढीली हो जाती थी ये जंजीर। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता था, पिछला पहिया सिर्फ घूमता ही नहीं था बल्कि ये झूमता भी था, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करता था। यानी एक तो आगे को चलता था और
उसके दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने को भी हरकत करता था। ये सिर्फ आगे नहीं चलता था बल्कि दाएं भी चलता था बाएं भी, यानी कि सिर्फ चलता ही नहीं था बल्कि घूमता ही नहीं था बल्कि ये झूमता भी था, यानी कि सिर्फ आगे ही नहीं जाता दाएं बाएं भी जाता था। चनाचे सड़क पर जो निशान पड़ जाता था, जो सड़क पर निशान पड़ जाता था उसको देखकर मालूम होता था जैसे कोई मकबूल सांप लहरा कर निकल गया है। तो इस पर सड़क पर ऐसे निशान लगते थे जैसे कोई मखमूर, मखमूर से शरारत से भरा हुआ, यानी कि शराबी शरारत से भरा हुआ कोई सांप जैसे सड़क पर लहरा हुआ था, यानी कि इस तरह से इस साइकिल के निशान पड़ते थे सड़क पर। मडगार्ड थे तो सही लेकिन पहियों के एन ऊपर न थे। मडगार्ड थे लेकिन पहियों के ऊपर न थे, वरना मडगार्ड पहियों के ऊपर होता। उनका फायदा सिर्फ ये मालूम होता था कि इंसान शुमाल की सिमत शेर को निकले और आफ्ताब मगरिब में ग्रूब हो रहा हो। तो मडगाड़ू की बदौलत टायर धूप से बचे रहेंगे। अगले पहिए में एक बड़ा सा पाइमर लगा था। अगले पहिया जो था उसमें एक पाइमर लगा था, यानी एक उसमें पंचर हुआ था, उस पर एक रबर लगा था जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफा लम्हा भर के लिए जोर जोर से ऊपर उठ जाता था। और जब ये चलता था तो ये ऊपर उठता था क्योंकि उसमें बड़ा पाइवर लगा था जिसकी वजह से टायर ऊपर आता था। और मेरा सिर पीछे को यूं झटका खाता था और जब ये पहिया ऊपर आता था इस पाइवर की वजह से, तो मुझे इस तरह का झटका लगता था जैसे कोई मुतवातिर, मुतवातिर से मुराद है लगातार ठुडी के नीचे मुक्के मारे जा रहा हो, जैसे कि मुझे कोई नीचे से मुक्के मार रहा था इस ठुडी के नीचे। पिछले और अगले पहिए को मिलाकर, जब पिछला और अगला पहिया उनको मिलाकर जो आवाज निकलती थी, चू चू फट चू चू फट चू चू फट की सदा सदा से मुरादे आवाज निकल रही थी। जब उतार पर बाइसिकल जरा तेज हुई, जब उतार जहाँ पे चढ़ाई जहाँ पे उतार चढ़ाई का उतार जहाँ पे था, बाइसिकल जरा तेज हुई, जब बाइसिकल तेज हुई तो फिजा में एक भूचाल सा आ गया, जैसे कि फिजा में एक भूचाल, एक जलजला आ गया। और बाइसिकल के कहीं और पुर्जे जो अब सो रहे थे, इससे पहले जो साइकिल के पुर्जे सो रहे थे, बेदार होकर गोया हुए, वो भी बेदार हुए और गोया हुए, यानी कि वो भी अब आवाजें निकालने लगे, वो भी अब बातें गुफ्तगू करने लगे। इधर उधर के लोग चूके, सारे लोग चूक गए। माऊ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, माऊ ने अपने बच्चों को गोद में लिया, सीनों से लगाया, क्योंकि उन्होंने जब ये अजीब आवाजें सुनी, खड़ड खड़ड के बीच पहियों की आवाज जुदा सुनाई दे रही थी। लेकिन चूंकि बाइसिकल अब पहले से तेज थी, इसलिए चू चू फट, क्योंकि अब साइकिल थोड़ा तेज हुई, अब चू चू फट के बजाय चू चू फट की आवाज अब चिचू फट, अब यानी कि चू चू फट नहीं, अब चिचू फट की आवाज निकलती थी। चिचू फट की सूरत अख्तियार कर ली थी। तमाम बाइसिकल किसी अदक तमाम बाइसिकल, ये सारा बाइसिकल यानी इसका हर पुर्जा किसी अदक, अदक से मुराद है कठिन मुश्किल, अदक से मुराद है कठिन मुश्किल, अफ्रीकी जबान की गर्दाने दोहरा रही थी, जैसे कि ये किसी अफ्रीका जबान की गर्दाने दोहरा रही थी, यानी कि अदक, अदक से मुराद है मुश्किल या कठिन। तो इस तरह से आज लेक्चर नंबर 6 हमारा इस मौजू के हवाले से मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल हमारा इस मौजू के हवाले से लेक्चर नंबर 7 होगा। बाकी